Hello friends, and welcome back to yet another episode of Economic Sutra. In this episode, we are going to look at a very important direct intervention that the government of India is doing at the very bottom of the economic pyramid, which is to provide tap water to all the villages in India. It's called the Jal Jeevan Mission. It was announced on the 15th of August 2019 from the ramparts of the Red Fort as part of the Prime Minister's annual speech on Independence Day. And the idea is that every village household has access to tapped water. Now, why is this an important intervention? It's an important intervention because a very large proportion of the lives, particularly of rural women, is used up in essentially fetching water. Not only is this very cumbersome work and difficult work, it uses up a lot of time, but also it has major implications as far as sanitation and safety is concerned, health is concerned. Of course, it also means that there is a huge amount of impact on gender relations and gender equality, because remember, it is the women mainly who work towards going and fetching water. And again, you need to see this in the wider context of efforts that have been made to make the lives of women easier, whether it's in terms of providing gas, whether it's in terms of building toilets, and of course, in this particular case, providing tap water. So in this episode, what we are going to do, we are first going to have a quick chat with the minister in charge, who is the Honorable Gajendra Singh Shekhawat. He is the Minister of the Jal Shakti Ministry, and we will be talking about the goals of this effort. We will be talking about how it is progressing and so on. But before I move on, I just want to give you a sense of how rapidly this effort is expanding. When this effort was announced back in 15th of August in 2019, barely 17% of rural households had access to tap water. Now, I want you to listen to this yet again. 73 years after independence, barely 17% of Indian households had access to clean drinking and household water through taps. That has now changed less than 2 years later, and as many as 49% of rural households have now access to tap water, so that you can tell from 17 to 49. And the idea is that in the next 2 years, we will have virtually 100% coverage. So clearly a major effort, but let's move on now and talk to the Honorable Minister Gajendra Singh Shekhawat. नमस्कार गजेंद्र जी, आपको इकोनॉमिक सूत्रा में स्वागत। इस एपिसोड में हम लोग जल जीवन मिशन के बारे में बात करना चाहते थे। तो पहला प्रश्न, इस मिशन का जो ये इतना एम्बिशियस सा मिशन है और इसका जो लक्ष्य है, इसके बारे में आप ज़रा हमें थोड़ा सा आइडिया दे सकते। देखिए, 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद में माननीय नरेंद्र मोदी जी ने एक संकल्पना देश के सामने रखी कि देश के सामान्य मानवी के जीवन में परिवर्तन लाने के लक्ष्य को लेकर के मेरी सरकार काम करेगी। और पिछले 5 साल के कालखंड में निरंतर फाइनेंशियल इंक्लूजन से लेकर के हाउसिंग फॉर ऑल से लेकर के सैनिटेशन फॉर ऑल से लेकर के क्लीन इलेक्ट्रिसिटी टू ऑल, क्लीनर फ्यूल टू ऑल, हर एक आदमी को गैस का चूल्हा मिले, हर घर को बिजली मिले, हर घर को शौचालय मिले, इस लक्ष्य के साथ उन्होंने काम किया। 2 नए विषय उस समय उभरे। एक ये कि ऑल इंक्लूसिव स्कीम बनेगी, नो सिटीजन शुड लेफ्ट बिहाइंड, कोई भी पीछे न रह जाए। और दूसरा कि हम जो भी करेंगे वो समयबद्ध रूप से करेंगे। और आपने देखा होगा कि जितनी भी योजनाएं बनी वो न केवल समय पर अपितु समय से पहले पूरी हुई। उसी के अनुक्रम में 2019 में जब दोबारा देश ने उन्हें प्रधानमंत्री बनने का अवसर प्रदान किया
तो उन्होंने तय किया, एक संकल्पना देश के सामने रखी कि 2024 के अंत तक हम देश के प्रत्येक ग्रामीण आवास तक पीने का पानी पहुंचाएंगे। ये केवल पीने का पानी नल के माध्यम से पहुंचाने की योजना नहीं थी, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन केवल का मात्र प्रोग्राम नहीं था, क्योंकि देश में इससे पहले भी आज़ादी के बाद से लेकर के इस 70-75 साल के कालखंड में केंद्र की सरकारों ने भी प्रयास किए, राज्य की सरकारों ने भी प्रयास किए, स्थानीय सरकारों ने भी अपने स्तर पर प्रयास किए, लेकिन कवरेज कुल मिलाकर के 16-17% तक पहुंचा था। अगर मैं एब्सोल्यूट नंबर में बात करूं, 19 करोड़ से ज़्यादा घरों में से केवल 3 करोड़ से कुछ ज़्यादा घरों तक ही पीने का पानी पहुंच पाया था। प्रधानमंत्री जी ने कहा ये केवल नल पहुंचाने का कार्यक्रम नहीं है, सही समय पर उचित गुणवत्ता का निर्धारित मात्रा में पानी हर घर को मिले, इसे इंश्योर करना है। और हम उस लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। हम सब जानते हैं देश में संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप जल राज्यों का विषय है, और राज्य का विषय होने के नाते हर राज्य को अपनी अपनी तरह से प्रिपेयर्डनेस है, अपनी अपनी तरह की तैयारी है, अपनी अपनी तरह की भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं। जब कार्यक्रम लॉन्च हुआ था, मिशन लॉन्च हुआ था, माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी, तब भी गुजरात 70% पे खड़ा था जी, और उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल 1% पर थे। 1% पे। और उस समय की परिस्थिति में हर प्रदेश के अपने अपने तरह के जियोग्राफिकल और पानी की अवेलेबिलिटी के हालात सब अलग अलग थे। हमने सारे राज्यों के साथ में एक व्यापक कंसल्टेशन किया, रीजनल कॉन्फ्रेंसेस की, मंत्रियों के स्तर पर वार्ताएं की, अधिकारियों के स्तर पर, सेक्रेटरीज के स्तर पर, इंजीनियर्स के स्तर पर, और उस व्यापक कंसल्टेशन के बाद में एक गाइडलाइन बनाई थी जो 25 दिसंबर 2019 को सुशासन दिवस के दिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने जारी की। ये डेट इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, वो शुरुआत के दिन था जहाँ से हमने इस योजना पे काम करना प्रारंभ किया। तो अनाउंसमेंट 15 अगस्त, इम्प्लीमेंटेशन शुरू हुआ 25 दिसंबर 2019, और 25 मार्च 2020 को 3 महीने बाद में देश लॉकडाउन की जकड़ में था। पैंडेमिक ने देश और दुनिया को घेर लिया था। सभी लोग लगभग ये कल्पना करते थे कि अब इस पैंडेमिक के कारण से जो व्यवधान पैदा हुआ है, शायद ये मिशन डीरेल हो जाएगा और समय पर पूरा नहीं हो पाएगा। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी की ड्राइविंग फोर्स और उनकी जो है मोटिवेशन की ताकत, मैं आज गर्व के साथ में कह सकता हूँ कि आज अगर मैं 25 दिसंबर 2019 से देखूँ, हम लगभग 2 साल और 3 महीने पूरे कर पाए। इस 27 महीने के कालखंड में हमने 6 करोड़ 11 लाख लोगों को पीने का पानी पहुंचाने में सफलता प्राप्त की है। जो कवरेज 16-17% के बीच में था, वो आज 48% से ज़्यादा हो गया है। हम आधी आबादी को जो है सस्टेनेबल तरीके से पीने का पानी मुहैया करा सकें, उस लक्ष्य तक, उस मुकाम तक पहुंच पाए हैं। निश्चित ही बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन राज्यों के सहयोग से, माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, आज गुजरात, तेलंगाना, हरियाणा, गोवा, ये ऐसे प्रदेश हैं जो 100% अचीव कर चुके हैं। गुजरात, पंजाब, ये ऐसे प्रदेश हैं जो लगभग 99% के आसपास में हैं, शायद शीघ्र 90-95% को क्रॉस कर चुके हैं, शीघ्र पूरा होने के जो है वो मुहाने पर खड़े। केंद्र शासित प्रदेश भी, 3 केंद्र शासित प्रदेश जो हैं, अंडमान निकोबार, पुडुचेरी, ये 100% पहले से कर चुके हैं। हम बहुत तेज़ गति से इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि 2024 तक हम इस मिशन को पूरा कर पाएंगे। तो आपने भी कहा कि इसके पहले भी बहुत सारे प्रयत्न किए गए थे, तो इस बार क्या किया गया जिसमें अलग से हट से हमने किया, जिससे ये सफल हो सक रहे हैं? देखिए, ये केवल पीने के पानी के मिशन का प्रश्न नहीं है। अब से पहले भी, चाहे किसी भी प्रोग्राम में, सरकारों ने जो काम किए थे, जो योजनाएं बनती थी, वो योजनाएं या तो कागजों में दफन हो जाती थी, या योजनाएं जो बनती थी वो कुछ चहेतों तक या वोट बैंक तक उसका लाभ सीमित रहे, इस दृष्टिकोण से बनाई जाती थी। लेकिन जैसा मैंने शुरुआत में कहा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो संकल्पना दी, देश के सामने एक नया डेवलपमेंट मंत्र दिया, वो था कि हम जो कुछ भी करेंगे वो सबके लिए करेंगे, सबका साथ और सबका विकास। हम साथ मिलकर के सबको विकास के लिए काम करेंगे। कोई भी, न राजनीतिक का विचारधारा के आधार पर, न किसी धर्म या किसी मज़हब के नाम पर, या न किसी जो है आगे अगड़े और पिछड़े के नाम पर, हम कोई भेदभाव न रखते हुए हर एक तक उस योजना का लाभ पहुंचाएंगे।
और देखिए दूसरा एक विषय और होता है, किसी योजना को इस व्यापक रूप से सफल करने के लिए दो चीज़ों की आवश्यकता होती है, और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो 4P प्रिंसिपल है वो इसमें सबसे सटीक है। पहला ये कि पॉलिटिकल विल होना चाहिए, राजनीतिक इच्छा शक्ति हो, नेतृत्व की इच्छा शक्ति हो कि मुझे करना है। दूसरा उसके लिए पब्लिक स्पेंडिंग हो। माननीय प्रधानमंत्री जी की इच्छा शक्ति थी मुझे करना है, पब्लिक स्पेंडिंग थी कि भारत सरकार अपनी तरफ से 50% राज्यों को, जो सामान्य श्रेणी के राज्यों को और पहाड़ी राज्यों को और विशेष श्रेणी के राज्यों को, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को जो है वो 90% ग्रांट देगी। हमने 3,60,000 करोड़ रुपए की पब्लिक स्पेंडिंग होगी इस क्षेत्र में अगले 5 साल में, इसको इंश्योर किया। तीसरा होता है कि हम इसमें स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप करें, हम ऐसे टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर्स, एक्सपीरियंस होल्डर्स, उनके साथ में जुड़ करके उनको इसमें नियोजित करें। और चौथा जो सबसे महत्वपूर्ण विषय जो है वो है कि इसको पीपल्स पार्टिसिपेशन किसी भी योजना में हो। तो ये 4P का प्रिंसिपल जो है, पब्लिक स्पेंडिंग, पॉलिटिकल विल, पब्लिक स्पेंडिंग, पार्टनरशिप्स और पीपल्स पार्टिसिपेशन, ये चारों अगर साथ में होते हैं तो निश्चित रूप से योजनाएं सफल होती हैं। तो भारत का जो भूगोल है वो कठिन भूगोल है, कहीं बहुत पहाड़ी है, ठंड है, कहीं सूखाग्रस्त है। तो ऐसे भूगोल में आपको कैसी कैसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, इन समस्याओं का समाधान कैसे किया गया? निश्चित रूप से चुनौतियां बड़ी हैं। हालांकि जल राज्य का विषय होने के नाते डिज़ाइनिंग से लेके, इम्प्लीमेंटेशन से लेके, ऑगमेंटेशन से लेके, ऑपरेशन, मेंटेनेंस सभी राज्य सरकारों को करना है। कितनी कठिन परिस्थितियाँ, लाहौल स्पीति की घाटी में, जम्मू में, लेह में इस तरह की परिस्थितियाँ थी, जम्मू एंड कश्मीर में, लेह में, कि जहाँ साल में 8-8 महीने, 9 महीने तक बर्फ़ रहती है, वहाँ पीने का पानी पहुँचा। तो इनका समाधान कैसे किया? हमने तकनीकी जो है राज्यों को जहाँ आवश्यकता थी वहाँ तकनीकी का सहयोग भी दिया। अरुणाचल प्रदेश का उदाहरण आपको देना चाहता हूँ। कम से कम 5,000 किलोमीटर तक पाइप डालने के लिए 5,000 किलोमीटर लोगों ने कंधे पर उठा करके या हाथी से खींच करके पाइप पहुँचाए होंगे। अच्छा, तब जा कर के वहाँ हुआ है जो है काम सफलता के साथ में पूरे हो पाए। तो निश्चित रूप से जहाँ जैसी आवश्यकता हो भारत सरकार हमेशा साथ खड़ी है। इस तरह का विश्वास हमने राज्यों को दिलाया है और उसी के कारण से राज्य आज तेज गति से इस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो ये जो जल जीवन मिशन है वो एक, आपने पहले भी कहा कि ये सिर्फ जल जीवन मिशन के दृष्टिकोण से ही नहीं देखना चाहिए। हमने बहुत सारी ऐसी चीज़ें, ऐसे स्कीम हैं जो मतलब होलिस्टिक तरीके से इसको देखा जाए, जैसे LPG का मिशन हो या टॉयलेट वाला जो मिशन है, सब मिला के अगर देखें तो जो एक होलिस्टिक हम लोग अप्रोच है, तो इसमें आपकी मिनिस्ट्री का जो जल शक्ति मिनिस्ट्री है उसका अगला लक्ष्य क्या होगा कि इसको इस प्रोजेक्ट के बाद अगला क्या? देखिए, लास्ट माइल कनेक्टिविटी की जब बात की जाती है, जब हमने शौचालय बनाने के लिए हम काम कर रहे थे, मेरे ही मंत्रालय के अधीन में विषय आता है। मैं एक उदाहरण देकर के आपको समझाना चाहता हूँ। हमने सैनिटेशन फॉर ऑल देश को ODF 2019 में 2 अक्टूबर को माननीय प्रधानमंत्री जी के श्रीमुख से डिक्लेयर किया, लेकिन उसके बाद में भी नए घर बनेंगे, नए आवास आएंगे, गाँव में नए मकान बनेंगे, भाइयों के घर अलग अलग होंगे, उनको निरंतर आवश्यकता रहेगी। तो ये स्कीम सस्टेनेबल बनी रहे, इसका प्रोविज़न भी किया है। और देश की सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ODF+ जब बनाया तब सस्टेनेबिलिटी का कंपोनेंट उसके साथ में रखा। ठीक इसी तरह के जो है प्रावधान और प्रबंध उपबंध इस योजना के साथ में भी करने पड़ेंगे ताकि ये योजना सस्टेनेबल बनी रहे। और जैसे मैंने कहा कि ये एक नए युग का सूत्रपात है, एक नए युग की शुरुआत है, जब हमने पहली बार क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को अश्योर करने की बात की है। केवल नल नहीं लगे, नल से जल भी मिले, हर घर में नल और नल से जल, और जल भी उचित गुणवत्ता का। और उसका मॉनिटरिंग आप कैसे करते हैं? देखिए, जहाँ तक क्वालिटी का मॉनिटरिंग का बात है, इस देश में इस तरह का कोई प्रबंध देश में था नहीं, कोई जो है निश्चित व्यवस्था नहीं थी। मैं यदि आपसे भी पूछूं, आप जानते हैं, हम सभी लोग जानते हैं कि पीने का पानी हमारे स्वास्थ्य के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। यदि मैं आपसे कहूं कि आपको पीने का पानी, आपके घर में कैसा पानी आता है, आप टेस्ट कहां से करवाएंगे, शायद आपको जानकारी नहीं होगी।
यकायक किसी व्यक्ति को यदि कहा जाए कि आपको ये ब्लड सैंपल टेस्ट दे करके टेस्ट कराना है, उसको मन में 4 जगह सीधे कौंधेगी कि मुझे कहाँ जा कर के सैंपल देना है और कहाँ मेरे को ब्लड टेस्ट हो सकता है, लेकिन पानी जो इतना इम्पॉर्टेंट है वो कहाँ टेस्ट होगा ये जानकारी नहीं थी। इस तरह की जो है समुचित व्यवस्था न होने के कारण से और पुराने समय में जिस तरह की व्यवस्थाएं रही उन पर विश्वास नहीं होने के कारण से लोग, विशेष रूप से शहरी क्षेत्र में लोग अपने घर में अलग अलग तरह के वाटर प्यूरिफिकेशन प्लांट सिस्टम्स लगाने के लिए मजबूर थे। कोई आरओ लगा रहा था, कोई जो है यूवी बेस फिल्टर्स लगा रहा था, कोई और तरह का फिल्टर्स, ज़ीरो बैक्टीरिया फ़िल्टर लगा रहे थे, कोई एक्वागार्ड लगा रहा था, सब अपने अपने तरह के वाटर फिल्टर्स लगा रहे थे। उसके कारण से जब जो है अननेसेसरी स्पेंडिंग हो रही थी, उसके कारण से जो है वो वेस्टेज ऑफ वाटर हो रहा था, वेस्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो रहा था। और उस चुनौती के कारण से लेकिन लोग मजबूर थे, और उसके बाद में भी वो लगाने के बाद में भी कैसा पानी आ रहा है उसको टेस्ट करने का भी कोई व्यवस्था नहीं थी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब ये कहा कि क्वालिटी और क्वांटिटी और कंटिन्यूटी ये तीनों होना चाहिए, तो हमने एक नया सिस्टम बनाया, वाटर क्वालिटी इंफॉर्मेशन का एक पूरा पोर्टल बनाया। देश भर में 2000 लेबोरेटरीज, हर जिला स्टेट की एक लेबोरेटरी हो, जिले पर लेबोरेटरी हो, हर ब्लॉक स्तर पर लेबोरेटरी बने, और हर एक लेबोरेटरी होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच किस तरह से आती है। माननीय प्रधानमंत्री जी जिसकी चर्चा करते हैं, कोविड के समय में जब हम सब जानते हैं, बहुत बार आपने भी सुना होगा कि एक वायरल जी लेबोरेटरी थी पुणे की, वहाँ से लेकर के हम हज़ारों तक पहुँचे और बहुत सीमित समय में। आज कोई भी व्यक्ति अपना टेस्ट कराता है, उसकी रिपोर्ट एक ही सेंट्रल रिपोजिटरी से जनरेट होती है ताकि डेटाबेस एक जगह सब करे। हमने उसी से सीखा। 2000 लेबोरेटरीज़ को NABL एक्रेडिटेड कराने की हम जो है कवायद हमने शुरू की है और हम बहुत आगे उसमें बढ़े। तो इसके पहले कितने थे लैब्स तो कुछ थे, कुछ आधे थे, कुछ अधूरे थे, लेकिन एक्रेडिटेड नहीं थे बिल्कुल भी। एक भी नहीं। एक्रेडिटेड लैब सारे हों और उनमें जितना भी सैंपल आए जी, हमने उस सैंपल की जो इंडिविजुअल कोई भी, अगर भारत का कोई भी नागरिक जाकर के वहाँ टेस्ट कराने के लिए अपना सैंपल देता है, उसको कितना शुल्क लगेगा इसको भी हमने तय कर दिया। उसका सैंपल जो है वो सीधा उस रिपोजिटरी पे नए वाटर क्वालिटी इंफॉर्मेटिक पोर्टल पर रजिस्टर होगा, वहीं से उसकी रिपोर्ट जनरेट होगी। और ताकि देश भर में जो क्वालिटी के ऊपर जांच हो रही है उसकी ऊपर एक सतत निगरानी रखी जा सके। कहीं भी अगर सैंपल देते हैं, आप अपने घर का सैंपल देते हैं और अगर वो क्वालिटी में फेल होगा तो आपको तो सूचना मिलेगी, आपके निवास स्थान के लिए से संबद्ध अधिकारी को और उससे ऊपर के अधिकारी तक को भी सूचना साथ में पहुंचेगी, साथ ही साथ में पहुंचेगी कि उसको तुरंत जो है इसके समाधान की दिशा में काम करना चाहिए। केवल इतना ही नहीं, देश भर के प्रत्येक गांव में 5 ऐसे लोगों को ट्रेन करना, और स्पेशली जो है हमने फोकस किया है कि महिलाओं को ट्रेन किया जाए, क्योंकि पीने का पानी सीधा महिलाओं से जुड़ा हुआ विषय है। उन्हीं की जिम्मेदारी है पानी को लाना, उन्हीं की जिम्मेदारी है पानी का प्रबंधन करना। हमने देश भर में अब तक 11 लाख महिलाओं को ट्रेन किया है। देश के 6 लाख गाँव में 11 लाख महिलाओं को ट्रेन किया है। उनको फील्ड टेस्टिंग किट प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि गांव में महिला अपने घर में आने वाले और अपने गांव में डिस्ट्रीब्यूट होने वाले पानी को क्वालिटी टेस्ट कर सके, उसकी क्वालिटी एग्जामिन कर सके और उन 12 बेसिक पैरामीटर्स पर क्वालिटी को असेस करके इसको सुनिश्चित कर सके कि गांव में पानी जो है वो ठीक गुणवत्ता का डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। और वो जो डेटा है वो भी इस नए वाटर क्वालिटी इंफॉर्मेटिक पोर्टल के साथ पर सिंक हो जाए, इसकी दिशा में हम काम कर रहे हैं। यहीं तक नहीं, इसके साथ में भी, इससे आगे बढ़ करके भी, क्योंकि तकनीकी का ज़माना है। मैंने इज़राइल में बात किया, मैंने नॉर्वेजियन कंट्रीज़ में बात की कि इस तरह की हमको कोई टेक्नोलॉजी मिले ताकि हम रियल टाइम सेंसर बेस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम, IoT बेस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम बना सकें। बहुत सारी दुनिया की टेक्नोलॉजीज़ प्रपोज की गई, लेकिन वो बहुत महंगी थी। भारत के परिप्रेक्ष्य में हमारे क्वांटम को देखते हुए वो संभव नहीं था। लेकिन हमने अपने युवाओं पर विश्वास किया, और जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम अपने लोगों पर विश्वास करके उनको मौका दें। हमने भारतीय स्टार्टअप्स को एक चैलेंज दिया कि इस तरह का रियल टाइम जो है क्वालिटी मॉनिटरिंग का सेंसर बेस IoT बेस जो है वो सिस्टम हमको डेवलप करके दें। 250 एप्लीकेशंस आई।
हमने 20 शॉर्ट लिस्ट किया, उनमें से 4 को फर्दर उनकी परफॉर्मेंस के बेस पे शॉर्ट लिस्ट किया, 2 को मौका दिया, 10 जगह ग्राउंड पे उनको एस्टेब्लिश किया। 1 साल तक 10 जगह फुल प्रूफ सक्सेसफुली उन्होंने रियल टाइम डेटा जो है क्वालिटी का, क्वांटिटी का और टाइमिंग का, ये सब जो है डेटा उन्होंने रियल टाइम अपलोड किया। अब हमने उनको 10 से बढ़ा करके 100 तक मौका दिया, 100 को भी 6 महीने तक टेस्ट किया है। हमने स्टेट से कहा है कि जहाँ जहाँ संभव हो वहाँ इस तरह का सिस्टम बनाएं, ताकि अगर कहीं भी क्वालिटी का इशू आता है वो तुरंत रिपोर्ट हो सके और इसका जो है तकनीकी के माध्यम से ये डिलीवरी बेस इस जल जीवन मिशन का जो है ठीक से मॉनिटरिंग किया जा सके। सो धन्यवाद गजेंद्र जी, आपसे इस विषय पे बात करने में बहुत ही धन्यवाद। और आगे मुझे आशा है कि ये मिशन 2 साल के अंदर पूरा कर सकेंगे। सो थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। So friends, I hope you got a sense of the scale of this project from the Honorable Minister. Now we'll go to the field and we'll try and show you what is happening on the ground. So the very first project that we are going to show you is a village just outside of Leh in Ladakh. It's a village where just till recently barely 5% of the households had access to tap water. Now this major project has been put in place, and you can see that there will be access to water very quickly to almost 100% of the households. Already 25% have access, but just to give you a sense of what this really means, you must understand that till this tap water project was put in place, women had to go outside, walk for miles in minus 30 degrees centigrade to try and fetch water. Just imagine how tough that is. So this is an absolute game changer as far as the lives of these people is, and this project is being specially done in a way that even when temperatures are very, very low, water will keep flowing. So this is something quite unique, that it's not just about putting the pipes in there. There's a lot of engineering that goes in, and I hope you'll get a sense of that. So let's go and have a look at this. पहले ये समस्या थी कि पहले टैंकर आते थे घर घरों में, उसकी वजह से हमें लाइन पे लगना पड़ता था, उसका कोई टाइमिंग भी नहीं था। अभी अपने घरों में हम पानी अच्छी तरह से मिल रहा है, उसे हम अच्छी तरह से यूज़ कर रहे हैं। हमारे यहाँ 130 घर है, सबको 100% पानी मिल रहा है। अभी सबको सब खुशी है। लद्दाख में जल जीवन मिशन को इम्प्लीमेंट करना आसान नहीं रहा, इसलिए क्योंकि बिकॉज इस इलाके की अपनी एक क्लाइमेटोलॉजिकल, टोपोग्राफिकल, लॉजिस्टिक और कैपेसिटी रिलेटेड अपनी चैलेंजेज रहे हैं। स्पेशली हमारे जितने भी पाइपलाइंस हैं उनको लगभग 1.5 मीटर के फ्रॉस्ट लाइन के नीचे जो है ले किया गया है, उन पर इंसुलेशन किए गए हैं ताकि जो है वो पानी सर्दियों में ना जमे। और साथ ही साथ में दूसरी टेक्नोलॉजीज़ भी यूज़ की गई हैं, जैसे हीटिंग करने के लिए या फिर जो है कंटिन्यूस वाटर ब्लीडिंग ड्यूरिंग द विंटर्स। तो ये सारी टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ किया गया है। आज ये स्कीम काफ़ी ट्रैक पे है और पिछले सर्दियों में हमें इसका बेहतर परिणाम देखने को मिला है, जब फ्रीजिंग टेम्परेचर में भी -20, -30 में भी बहुत से गांवों ने सक्सेसफुली इन जो है रनिंग वाटर को मेंटेन किया है और उसको चलाया है। So now we are going to go, friends, from the freezing temperatures of Ladakh to a part of India which gets really hot in summer, that is Bundelkhand, and we are going to a village outside of Chitrakoot. Again, this is a village which had almost no tapped water till this project got there.
This is still work in progress, but you will see how the pipes are laid, what are the kinds of problems that the engineers face, and the enthusiasm with which the locals are looking forward to this. So let's head off to Chitrakoot. जोड़ा माफी से शुरू के का डिस्टेंस कितना है? पानी की क्या समस्या थी आपके यहाँ? पानी की तो बहुत बड़ी समस्या है। पानी बोले तो ये 2 किलोमीटर आगे से हम लोग लाते थे। एक आदमी अगर कोई घर में कुछ हो गया चले गए तो पानी के लिए प्रॉब्लम है, पानी नहीं है। पानी में बहुत है, मगर ये लग गया तो सुविधा है, मगर ये डेली छोड़ना पानी जब। यहाँ पर पाठा क्षेत्र है और पाठा क्षेत्र में पानी की समस्या मतलब शुरुआती दौर से ही बनी रही, वो आज भी ये समस्या मतलब थी। लेकिन जब से ये नमामि गंगे जल शक्ति परियोजना शुरू हुई है तब से मतलब लोगों को काफ़ी राहत हुआ है। और यहाँ पर मतलब जो है हर आदमी को मतलब जो पूरे यहाँ भर नहीं, मेरे गांव भर में नहीं, पूरे पाठा क्षेत्र में, पूरा मानिकपुर क्षेत्र जितना लगाता है मतलब सारे लोगों को मतलब इसका लाभ मिल रहा है, समुचित लाभ मिल रहा है। पहले जानवरों के लिए देखिए बहुत दूर जाना पड़ता था। पहले लोग बाग नदी ले जाते थे, तालाब में ले जाते थे। आजकल मतलब कोई भी कहीं लेके नहीं जा रहा। आजकल हर आदमी को उसका लाभ सीधा सीधा लाभ मतलब उसके घर पर पहुंच रहा है। मतलब हर आदमी के घर पर नल लगा हुआ है। गांव में पहले कुछ लोगों के पास कुएं और ये थे, लेकिन अब वो सारी समस्याएं इससे अब कोई कर नहीं पाता। अब जो ये आपकी ये चल गई तो इससे जो है हर आदमी को खुशहाली हो गई। मगर देख के पानी तो रोज छोड़े तो अच्छा है। कितने जगह नल लग गए? लगभग गांव में नल लगे हैं, 4 से 10 जगह लगे हैं। लेकिन नल जैसे एक ग्रुप में लगा दिए गए तो 500 मीटर रेंज के आज लोग वहां जाते हैं। Revenue village which is going to be benefited through this project, and in this Pathramani people will get within a month drinking water. Under this project, there will be around 11.8 lakhs of people who will be benefited from this project. This project has been designed for up to the year of 2051, taking the view that there is so much water scarcity in Bundelkhand region. 29 million liters per day we are treated here. This water will goes to the 84 villages surrounding this area. It is covered from this area 100 kilometers from the water treatment plant. We are constructing 26 OHTs, water tanks, and 11 CWSs to send this water to that area. So friends, I hope you enjoyed this episode. We tried to show you how this Jal Jeevan mission is rapidly progressing, the efforts that go on the ground, the sheer scale of ambition, and how quickly we are being able to roll it out. And of course, I'm sure you got a sense of the way this is absolutely transformational for the lives of millions of Indians who were waiting for tap water all these years. So with that, thank you very much for watching, and see you again at the next episode of Economic Sutra at Sansad TV. Thank you very much.